Let's we discuss the exercise of chapter number 3. I have already sent you a solution of that exercise by WhatsApp. Now look here, the exercise of chapter number 3. That's on page number 55. The page number 55, which is having the exercise. Now look, first of all, they are the fill in the blanks. Human reproduce sexually because male and female are separate. Second one, humans are oviparous, viviparous, ovoviviparous. Answer is human is viviparous. Ovoparous means those animals laying eggs. As for example, amphibia, etc. Ovoviviparous. These are also egg-laying animals, but these are those animals where they lay fertilized eggs. As for example, all birds. Because in birds, internal fertilization, after fertilization, those fertilized eggs are laid. Hence, they are called as ovoviviparous. Male and female gametes are haploid. Sorry, question number 3, fill in the blanks, question number C. Fertilization is blank in humans, internal, inside the mother body. Male and female gametes are haploid and only 23 chromosomes, not 23 pairs, means 46, only 23, haploid and zygote is diploid. Why? Both gametes, male and female gamete fuse together and both are the haploid. Haploid means they turn into the diploid. The process of release of the ovum from the mature follicle is called, what is it is? That is a ovulation. Then ovulation is induced by the hormone called, बोलो कौन सा? Luteinizing hormone. How will you get the answer luteinizing hormone? Move to the page number 50. On the page number 50, diagramic representation of the various events during the menstrual cycle. Look, 14th day that is on ovulation. मीन्स ओवेरियन इवेंट्स में देखो उसमें ओव्यूलेशन लिखा है, वहाँ पे 14 दिन को ओव्यूलेशन हुआ. उसके ऊपर भी हॉर्मोन्स है, उसके नीचे भी हॉर्मोन्स है. ऊपर के हॉर्मोन्स में जो है वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है और नीचे के हॉर्मोन्स में देखोगे तो वो ओवेरियन हॉर्मोन्स है. अब बोलो इसमें क्या आएगा? ओव्यूलेशन के टाइम पे किसका लेवल हाई है? तो ऊपर की तरफ तुम देखो तो पिट्यूटरी में LH और नीचे की तरफ देखोगे तो ओवेरियन में है एस्ट्रोजन. But I am telling the answer that is the LH. Why? The question, the reason is that when you go for the estrogen, तो estrogen देखो जहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं है वो सेकंड स्टेज में ल्यूटेल फेज के सेकंड पार्ट में भी वो थोड़ा बढ़ता है. जब LH है ओनली ओव्यूलेशन में ही होता है, मीन्स LH is responsible for the ovulation. Yes. The fusion of the male and female gamete is called, बोलो fusion male and female gamete आके जो फ्यूज हुआ तो क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, बोलो कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? तो एग्जैक्ट एम्प्यूला और इस्थमस नहीं, दोनों के कनेक्टिंग पे. वो जो है तुमको पूरा उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आया हुआ है, उसको देख लेना, बाद में हम जब डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो देख लेते हैं. zygote divides to form blank which implantation in uterus. बोले यूटेरस में जब उसका इम्प्लांटेशन होता हैगा तो वो कौन से स्टेज में होता हैगा? बोलो the zygote divides to form a blastocyst. blastocyst याद आना चाहिए. फर्टिलाइजेशन के बाद में कंटिन्यूस क्या होता गया? उसका डिवीजन होता गया माइटोटिप टाइप पे.
बरोबर है। बोलो वो माइटोटिक टाइप है पर कंप्लीट माइटोटिक नहीं है। माइटोटिक टाइप इसके लिए है कि उसके अंदर 2n46 क्रोमोसोम 23 पेयर एवरी टाइम 2n46 23 पेयर ही रहेंगे। बट एवरी टाइम क्या हुआ उसका जो पूरा है वो साइज एवरी टाइम उसका वॉल्यूम हाफ होता गया। तो बोलो ऐसा ने जो डिवीजन हुआ तो उसको ने क्या क्या आपने कहते हैं माइटोसिस नहीं कहते, बोलो क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से। क्लीवेज। The structure which provides the vascular connection between fetus and uterus, बोलो fetus and uterus को बीच में जो स्ट्रक्चर आगे के लेक्चर देखोगे तो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। Then after draw the level diagram of the male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की फिगर डायग्राम मैंने चैप्टर नंबर 4 में करवाई थी। ये जो अभी भी यहाँ पे ये देखो, मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा रिपीट नहीं करता हूँ, बट थोड़ा वैसे तुम अगर जो चैप्टर नंबर 4 के उसमें हमने जाके देख लोगे वीडियोस में तो तुमको मिल जाएगी। पहले हमको ये ड्रॉ करना हैगा, ये पार्ट मैं एक ही साइड का पार्ट ड्रॉ करूँगा। फिर ये जो पार्ट है ये अपने ड्रॉ किया, ये यहाँ से आके ये अपना कोट होता है, फिर ये यहाँ से ऐसा थोड़ा बल्ज होता है, बड़ा हो जाता है। इतना होने के बाद में थोड़ा वापस ऐसा होने के बाद ये पूरा, और इसका एंड पोर्शन जब आता है तो ये यहाँ पे एंड पोर्शन में वापस थोड़ा ऐसा होकर इतना जो पोर्शन हमने ड्रॉ किया तो ये अपने समझ लो कि हमने मोस्ट ऑफ इसका पार्ट ओवर कर दिया है। क्योंकि अब अपने यहाँ से हमको जो ड्रॉ करना हैगा तो ये ड्रॉ करने में वहाँ सा डिफरेंस या दोनों तरफ की, और यहाँ से फिर ये कॉमन, ये यहाँ पे आके इसके साइड में होके कॉमन बन गई। अब इधर जो ये ज़्यादा का एक्स्ट्रा पार्ट जो दिया हुआ रहेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसकी जो भी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स ने सब होती है वो है। इतना होने के बाद में ये यहाँ से ये जो इतना जो पार्ट है वहाँ पर ये नीचे का ये जो पार्ट है वहाँ पर ये दो पोर्शन, और अब ये यहाँ से पूरा जो पोर्शन है वो इंटीरियर पार्ट के जो भी टिश्यूज जो रहते हैं वो इतना होने के बाद में ये जो है यहाँ से और फिर यहाँ पे टेस्टिस्टर दोनों साइड पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है तो उसमें भी पहले ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक आने के बाद में ये अंदर की तरफ या नीचे से नहीं एडजस्ट होता है पहले तो ये यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ऊपर से ड्रॉ कर दोगे तो इंटरनल पार्ट अच्छे से आ जाएगा। यही इंटरनल पार्ट की ये लाइन से इसको कंटिन्यूटी में लेना है।
इतना होने के बाद में यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे तो ये ऐसा दूसरे साइड अच्छे से फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर if asked, you will have the benefit of the figure, directly you will get the mark. Okay. Let's move to question number 4, because 3 and 4 are the draw the label diagram of the male reproductive system, and fourth one is the label diagram of the female reproductive system. Write two major function of each of the testes and ovaries. बोलो मेजर फंक्शन, बोलो टेस्टिस में समझ में आना चाहिए। इट्स मेजर फंक्शन इज व्हाट? टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ओवरीज में टू प्रोड्यूस ओवा। चलो टेस्टिस में आयोवेल सेल्स, व्हाट आर दोस सेल्स? लेडिंग सेल्स। सो आना चाहिए कि लेडिंग सेल प्रेजेंट इन द टेस्टिस प्रोड्यूस द हार्मोन्स नोन एज द एंड्रोजन्स। Among those androgens, testosterone is the major one, which is the responsible for the male characteristic structures. Same way ओवरी में ओवा प्रोडक्शन होने के बाद में उसके अंदर से जो भी आते हैं वो बोलो ओवा प्रोडक्शन के बाद में जो ओवा का प्रोडक्शन होता है, ओव्यूम का प्रोडक्शन होता है, वो ओव्यूम के प्रोडक्शन में जब यहाँ से ये फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो उसमें से आने वाला हार्मोन है ईस्ट्रोजन। चलो फिर अपने क्या हो जाएगा, जब यहाँ से ओव्यूलेशन होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है तो वहां से आने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। तो बोलो यहाँ पे क्या दूसरे फंक्शन आएंगे? ओवरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एट द टाइम ऑफ द फॉलिकल डेवलपमेंट एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। Then after, describe the structure of the seminiferous tubules. Describe the structure of the seminiferous tubules. The structure of the seminiferous tubules, that is on the page number 43. मिला just next to the male reproductive system. बोलो each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubules is lined inside by the two types of the cell called the male germ cells or the spermatogonia and the Sertoli cells. The male germ cells means the spermatogonia undergo meiotic division and finally leading to the sperm formation, while Sertoli cell provides the nutrition to the germ cells. The regions outside the seminiferous tubules called the intestinal spaces contain small blood vessels and intestinal cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormone called the androgens. Other immunological competent cells are also present. This is the structure of the seminiferous tubules. Question number 6. What is spermatogenesis? Briefly describe the process of spermatogenesis. Spermatogenesis is the page number 45. No, page number 47, sorry. Look. Gametogenesis. उसमें देखो थर्ड लाइन, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। वो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो जो सेल्स है अभी हमने लिए थे वो जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो इमेच्योर सेल है जो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको नहीं बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्मेटो बाय द प्रोसेस नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस that began at the puberty.
The spermatogonia, single spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by meiotic division and increase in numbers. Multiply again, increase in numbers. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes, means 23 pairs. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अब वो जो spermatogonia बना है उसमें से क्या होगा, periodically थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो मियोटिक डिवीजन करेंगे. क्यों ऐसा होता है, मैंने समझाया था कि सभी एक टाइम पे कर देंगे तो फिर स्पर्म्स प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. तो जो भी स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के मिडल पार्ट में आते जाता है वो मियोसिस करता जाता है. A primary spermatocytes complete the first meiotic division, reduction division leading to the formation of the two equal haploid cells called the secondary spermatocyte. ओगोनिया में अभी देखेंगे अनइक्वल है, इसमें इक्वल रहेगा. Which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce equal haploid spermatids. अब second division होने के बाद में जो भी बनेगा वो भी equal रहता है, उसको बोलते हैं spermatids. Which would be the number of the chromosome is 23 haploid. The spermatids are transported into the spermatozoa sperms by the process called spermatogenesis. After spermatogenesis, sperms hairs become embedded in the Sertoli cells because Sertoli cells provide nutrition and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Question number 7. Name the hormones involved in regulation of the spermatogenesis. वही पेज नंबर 47 पे उसके नीचे का पैराग्राफ. Spermatogenesis starts at the age of the puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. और ये GnRH कहाँ से आएगा, तो हाइपोथैलेमिक है, हाइपोथैलेमस में आएगा. प्यूबरिटी आने के बाद में वो पता चल गया तो वहाँ से अपने बोले क्या क्या रिलीज हुआ, GnRH. वो GnRH ने किसके ऊपर इफेक्ट करी, तो पिट्यूटरी पे. तो पिट्यूटरी पे से कौन आया, GN मीन्स कौन, गोनेडोट्रोपिन. गोनेडोट्रोपिन में कौन आया, LH एंड FSH. तो बोलो हाइपोथैलेमिक में से आया GnRH. GnRH ने इफेक्ट करी किसके ऊपर, पिट्यूटरी एंटीरियर लोब पे. पिट्यूटरी एंटीरियर लोब में से क्या आया, GN मीन्स कौन, गोनेडोट्रोपिन मीन्स 2 FSH एंड LH. This, if you recall, it is a hypothalamic hormone. The increased levels of GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone (FSH). LH act as the leading cells on the बोलो LH किसके ऊपर इफेक्ट करता है, leading cells, and stimulate the synthesis and secretion of the androgens. In turn, एंड्रोजन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस. बोलो एलएस से लीडिंग सेल पे इफेक्ट हुई तो वो एंड्रोजन सिंथेसाइज करता है, और ऐसे ही वो जो एंड्रोजन फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे इफेक्ट करता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे हेल्प करता है. पूरा तुमको याद रहना चाहिए. एलएच आया, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी में जीएन आया, वो जीएन में कौन सा, एलएच. एलएच ने किस पे इफेक्ट करी, लीडिंग सेल पे. लीडिंग सेल में से क्या आया, एंड्रोजन. एंड्रोजन ने किस पे इफेक्ट करी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो वहां पे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस. FSH act on directly on the Sertoli cells. तो GnRH में से जो पिट्यूटरी में GN आया उस सेकंड GH कौन है, FSH. वो डायरेक्ट इस पे इफेक्ट कर देता है Sertoli सेल पे, and it stimulates secretion of the some factor which are helpful in the process of spermatogenesis. तो वो भी spermatogenesis के लिए FSH, बट वो डायरेक्ट नहीं करता. वो क्या करता है, ऐसे कुछ फैक्टर रिलीज कराता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. अभी देखा था वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट 4 लाइन में देखो, बोलो 4 पेज नंबर 47. आफ्टर spermatogenesis, sperm's heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. तो दूसरी भी थी, कौन सा, हाँ उसके ऊपर ही है. The spermatids are transferred into the spermatozoa means sperms by the process called spermatogenesis. तो पेज नंबर 46 पे स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट 1 2 3 4 5 6 लाइन में ये दोनों डेफिनेशन है.
9 ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द स्पर्म। चलो स्पर्म का डायग्राम हमको ड्रॉ करना आएगा। स्पर्म का डायग्राम भी मैं अभी यहाँ पे स्पीड में ही अपने बताऊंगा, बहुत वो उसमें टाइम नहीं दूंगा। देखो स्पर्म की फिगर ड्रॉ करने के लिए that is given on the page number 48 फिगर नंबर 3.6। हमें क्या आपने करेंगे तो बोलो, पहले एंटीरियर पार्ट ऐसा ट्राइंगल जैसा रहेगा जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। वो एक्रोजोम को ऐसा ड्रॉ करके उसको ऐसा हम बताओगे, थोड़ा डॉटेड ऐसा आपने करो, फिगर में भी ऐसे दिया है। उसके नीचे हेड रीजन जो है वो हेड रीजन यहाँ से जो ऐसा आपने स्टार्ट होता है, ये हेड रीजन का मेन जो ये पार्ट है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स एंड अदर कंटेंट। ये जो न्यूक्लियस है तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये पूरा जो स्पर्म है वो एक सेल है, तो बोलो वो जो सेल है ये एक्रोसोम का कवरिंग आया, और पूरा सेल है तो बोलो यहाँ पे उसका एक कवर आएगा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट यहाँ बोलते सब इतनी सब लाइनें पता नहीं चलता। देखो पहले तुमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ये सब हमने कर दिया, एक्रोसोम का पार्ट हो गया। यहाँ से ये थोड़ा ये अपने छोड़ के ये अपने न्यूक्लियर ड्रॉ कर दिया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एक उसके ऊपर एक्रोसोमिक मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होने के बाद में यहाँ से तुम देखोगे तो अब खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंटिन्यू रहेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मिडल पीस पार्ट है यहाँ से आता है, स्पर्म का मिडल पार्ट है, उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पैटर्न। यहाँ पर्टिकुलर पैटर्न है, बोलो क्या है, जिगजैग पैटर्न। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में ये मिडल पार्ट ओवर होता है, यहाँ पे ये ओवर होता है, तो यहाँ से अंदर से बेसल बॉडी में से ये टेल है। बट दिस plasma membrane continue and it end here. Let's we move to next question. With the number 10, what are the major components of the seminal plasma? सेमिनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या आएगा? तो सेमिनल प्लाज्मा क्या है वो पता है पहले? तो देखो पेज नंबर 48 पे आओ। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द पेज नंबर 48 पे फर्स्ट टू लाइन का एक पैराग्राफ है, फिर एक है बड़ा पैराग्राफ है जो स्पर्म का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। उसके नीचे sperms released from the seminiferous tubules, the transported by the accessory ducts. Secretion of epididymis, wide difference, seminal vesicle and prostates are essentially for maturity and motility of the sperms. The seminal plasma, ये जो इसका जो सिक्रीशन है उसको हम बोलेंगे क्या? सेमिनल प्लाज्मा। बोलो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, ये सेमिनल प्लाज्मा, बोलो ये सेमिनल प्लाज्मा के अंदर उसका कंस्टिट्यूट क्या है, उसके अंदर क्या होता है? बोलो कोई को पता है कहाँ पे था? मेल रिप्रोडक्टिव, यस, पेज नंबर 44 पे देखो, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ फिगर के नीचे। Secretion of this gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. थोड़ा आंसर वहां से मिलता है, थोड़ा आंसर यहाँ से मिलता है। सेमिनल प्लाज्मा किसको कहते हैं वहां से पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा पेज नंबर 44 पे। जब यहाँ पे इसका मेल रिप्रोडक्टिव का डिस्क्रिप्शन ओवर होता है वहां से उसका शॉर्ट में और उसका कंस्टिट्यूट मिलेगा। बोलो क्या क्या है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स।
व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। वापस वही के वही आंसर आ गया, मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। बोलो कहाँ से आएगा, तो पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पे देखो लास्ट पैराग्राफ एंड पेज नंबर 44 पे सेकंड पैराग्राफ, अभी जो हमने वो सेमिनल प्लाज्मा में किया वो। बोलो 43 पे लास्ट पैराग्राफ, द मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूडेड testis, vasa efferentia, epididymis and vasa deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through the rete testis. seminiferous tubules में जो भी sperms प्रोड्यूस को होता है वो रेटे टेस्टिस में से बाहर निकलता है। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis. अब वो जो रेटे टेस्टिस में से जो आके ने टेस्टिस के बाहर स्पर्म आएंगे वो आएगा वासा एफरेंसिया से, तो वासा एफरेंसिया उसको ट्रांसफर करेगा एपिडायमिस में, एंड एपिडायमिस लीड्स इनटू द वासा डिफरेंशिया, और वो एपिडायमिस उसको कहाँ मिल जाएगा, वासा डिफरेंशिया मिल जाएगा। दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स योर यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड द इजैक्यूलेटरी डक्ट। और वहाँ पे उसके अंदर जो सेमिनल वेसिकल भी ओपन होगा उसके सिक्रेशन के लिए, तो कंबाइन अब बनेगा उसमें बनेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। वासा डिफरेंशिया जब आता है एब्डोमेन में एंटर होता है और वहाँ सेमिनल वेसिकल उसका जो भी कुछ रिलीज करता है, तो वो कंबाइन को फ्लो करने के लिए जो ट्यूब है उसको बनेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड फ्लूइड। बोलो इसका सबका फंक्शन क्या है, स्टोर करना और ट्रांसफर करना, एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में। जो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये अपने नाम दो। चलो ऐसे ही बोलो, दूसरा आएगा पेज नंबर 44 पे सेकंड पैराग्राफ। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स include the paired seminal vesicles, a prostate is a single one, and paired bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretion of the bulbourethral gland also helpful in the lubrication of the penis. Then question number 12, what is the oogenesis? Give the brief account of the oogenesis. Brief account of the oogenesis, it is on the page number 48. हमको कहाँ से अपना स्टार्ट करना है, तो वहाँ से कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से oogenesis स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट करके एंड तक। बोलो कहाँ पे, पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49 पे। The process of the formation of the mature female gametes oogenesis, which is mildly differentiated spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when the couple of the million gametes mother cells called oogonia are formed within each fetal ovary. fetal stage की ओवरी है, उसके अंदर ही fetal stage में ही ओवरी के अंदर oogonia है, formed within the each fetal ovary. No more oogonia are formed or added after the birth. These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division 1 and get temporarily arrested at this stage called the primary oocyte. बोलो ये जो सेल है वो उन्होंने फर्स्ट डिवीजन meiotic डिवीजन स्टार्ट किया, बट meiotic डिवीजन के प्रोफेज 1 में आके टेम्पररी स्टॉप हो गए, तो इसको हमने बोलेंगे प्राइमरी oocytes. Each primary oocyte then surrounded by the layer granulosa cells and called the primary follicle. अब ये जो प्राइमरी oocyte थे उसके ऊपर लेयर बना, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase of the birth to the puberty. बर्थ से प्यूबरिटी के बीच में लार्ज नंबर ये डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 60,000 to 80,000 ले जाते हैं। तो बोलो ये क्या रह गया, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी oocytes. The primary follicle is surrounded by more layers of the granulosa cells and they new theca and called the secondary follicle. बोलो इसके आने वालू इस ज़्यादा के लिए आया है, ज़्यादा होते हैं कि यहाँ इजी समझने के लिए एक ही हमने, बट वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बोलो ये जो पूरा बन गया वो सेकेंडरी फॉलिकल, बट हाँ उसका सेल तो वही है प्राइमरी oocyte से। The secondary follicle soon transfer into tertiary follicle which is characterized by the fluid filled cavity called antrum. देखो ये दोनों के बीच में की जो स्पेस है, इसमें जब लिक्विड फ्लूइड फिल हो जाता है इसको बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। ये है अभी प्राइमरी oocyte ही।
बोलो खाली ये जो था इसके अंदर ये अपना फिल वाज, वो बोलो प्राइमरी oocyte था जब ये खाली यही था, और प्राइमरी के ऊपर ये आया तो प्राइमरी फॉलिकल बना, जब सेकंड लेयर बना तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, इसके बीच में लिक्विड आ गया तो टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल बनता है तब इसकी थोड़ी साइज बढ़ती है, एंड इट कंप्लीट इज फर्स्ट डिवीजन। इसमें एक पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। This secondary follicle should transfer into the tertiary follicle, which is characterized by the fluid cavity filled antrum. The theca layer is organized into inner theca interna and outer theca externa. ये outer theca externa, inner theca interna. It is important to draw your attention. It is this step that the primary oocyte within the tertiary oocyte grows in size and complete its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large number of the haploid secondary oocyte and tiny first polar body. The secondary oocyte retain bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. तो primary oocyte में जो भी था वो सब cytoplasm secondary oocyte को मिला, और अंदर जो first polar body बनी वो degenerate हो जाएगी। 8 present we don't know whether the tertiary follicle further changes into the mature follicle called the Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. ये secondary oocyte के ऊपर एक और membrane बन जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, वो मेम्ब्रेन को बोलेंगे जोना पेलुसिडा। बोलो समझना, ये सेकेंडरी oocyte के ऊपर बना, यहाँ बाहर की तरफ नहीं, थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना वो तो ऐसा ही रह गया, एंट्रम भी ऐसा ही रह गया। जो प्राइमरी oocyte था उसमें से डिवीजन कंप्लीट होने से सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा करेगा जोना पेलुसिडा। द ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे अब इसको, टर्सरी में से ग्राफियन। It rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Yes. Question number 13. Draw a level diagram of section through ovary. Section through ovary. Page number 49. देखो ऊपर की फिगर, ऊपर की जो पूरी फिगर है वो अपने फिगर के अंदर तुमने देखो तो ब्लड वेसल और कनेक्टिंग टिश्यू के साथ में ये पूरा दिया हुआ है। ये ब्लड वेसल कनेक्टेड टिश्यू और फिर ये यहाँ से ये जो आएगा तो ये सब पूरा ओवरिन स्ट्रक्चर है। ये ओवरिन स्ट्रक्चर में से यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी से सब साइज में बढ़ते जाते रहेंगे, और लास्ट में जो है दो उसमें से प्राइमरी फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल में से जो रिलीज हो गया है ओव्यूलेशन होने से ओव्यूम, तो वो जो रह गया उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। Then after second figure is structure of the Graafian follicle. ग्राफियन फॉलिकल जो समझ में आना चाहिए, क्या है ग्राफियन फॉलिकल में? आउटर लेयर है, इनर लेयर है, अंदर का सेल है, और वो सेल के आजू बाजू बोलो एंट्रम है, और क्या है कोरियोना रेडिएटा, और वो सब है। वो मैंने कल जो रिलीज किया तुमको आंसर की भेजी उसमें पूरी डिटेल फिगर है, तुम देख सकते हो। सिंपल फिगर है ग्राफियन फॉलिकल की फिगर तुम्हारी ये सेकंड सेक्शन ऑफ ओवरी में भी दी है, उसके लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। Name the function of the following. कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का कब वो अपने बनता है, आंसर आएगा जब ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है तब क्या आपने करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग द luteal phase and menstrual cycle. High level of the progesterone inhibits the secretion of FSH, LSH, etc., which prevent thereby preventing ovulation further. It also allows the endometrium of the uterus proliferation and to prepare the cell itself for implantation. तो क्या होता है उसमें से, क्या प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन ने दूसरे जो हार्मोन्स है उसको रिलीज करना बंद कर दिया, एज वेल एज ये सेकंड ल्यूटियल फेज में आया, मींस कॉर्पस ल्यूटियम बन जाए तब आएगा,
उसमें से, कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये जो एक ओव्यूम फर्टिलाइज होके जाएगा एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए अंदर का जो एंडोमेट्रियम है उसको प्रिपेयर करता है। देन आफ्टर एंडोमेट्रियम, it is the innermost lining of the uterus. It reaches in glands and undergoes cyclic changes during the various phases of the menstrual cycle to prepare itself for the implantation of the embryo. Menstrual cycle में वो ऐसे changes करता है जिससे implantation embryo का होता है। Acrosome is this one. It is a cave-like structure present in the anterior part of the head of the sperm. It contains by hyaluronidase enzyme. Which enzyme? Hyaluronidase, which hydrolyze the outer membrane of the egg, thereby helping the sperm to penetrate into the egg at the time of the fertilization. Sperm tail. Sperm tail. It is the longest region of the sperm that facilitates the movement of the sperm inside the female reproductive tract. Fimbrium. ये oviduct का anterior. They are the fingerlike position of the ovarian end of the fallopian tube. They help in the collection of the ovum after ovulation, which facilitate the beating of its cilia. उसके ऊपर जो cilia है उससे वो करके वो ओवा को कलेक्ट करता है। Question number 16. Identify true or false. If correct, if they are the false. Look one. Androgens are produced by Sertoli cells. बोलो it is बोलो कैसा है, it is false because androgens are not produced by the Sertoli cells but they are produced by the Leydig cells. Second, spermatozoa get nutrition from the Sertoli cell. Yes, in Sertoli cells में से Leydig cells are found in ovary. False. Leydig cells are found in testes. In space of the seminiferous tubules. Leydig cells synthesize androgens. Yes, right. Oogenesis take place in the corpus luteum. No, corpus luteum के पहले ही oogenesis हो, तो ovulation हो गया, फिर जो space रह गया उसको हम corpus luteum बताएंगे। तो oogenesis take place in corpus luteum. It is false, or it take place in ovary. Menstrual cycle cease during the pregnancy. True. Presence or absence of the hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Yes, true. Question number 17. What is the menstrual cycle? Which hormones regulate menstrual cycle? बोलो menstrual cycle क्या है और वो कौन से हार्मोन उसको रेगुलेट करते हैं। तो इसके लिए तुमको जो menstrual cycle की जो फिगर है चार्ट वाली वो अच्छे से आनी चाहिए, और वो जो है वो जो फिगर उसके नीचे जाऊँ उसका वो है डिस्क्रिप्शन, उसमें से कहाँ पे, तो पेज नंबर 50 पे। लास्ट सेकंड है। The changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the level of the pituitary and ovarian hormones. The secretion of the gonadotropins, कौन सा यहाँ भी आएगा, LH and FSH। बोलो मेल में भी कौन सा आया था, LH and FSH। अब यहाँ का LH FSH ने वो सब समझने के लिए तुमको पेज नंबर 50 पे जो पूरी फिगर दी है, वो फिगर के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन का जो वो दिया है वो आना चाहिए। FSH और LH के करस्पॉन्डिंग दोनों आने चाहिए। Gonadotropin FSH increase gradually during the follicular phase. बोलो फर्स्ट पेज से फर्स्ट 14 डेज ऑफ follicular, तो देखो FSH और LH थोड़ा थोड़ा लेवल क्या होता है, बढ़ता है। And stimulate the follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. देखो FSH और LH क्या करता है, फॉलिकल को भी डेवलप करता है और नीचे के भाग में देखोगे तो समझ में आएगा एस्ट्रोजन का भी लेवल इंक्रीज करता है। जहां तक वो चार्ट फिगर नहीं आएगी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम अच्छे से देखो तो समझ में आएगा। फर्स्ट 14 डेज जो फॉलिकुलर फेज है उसमें FSH एंड LH आया, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी में से आया, उसने वेरियस
फॉलिकल तो डेवलप करा बट तुमने देखो एस्ट्रोजन के लेवल को भी इंक्रीज किया। बोथ LH and FSH attain peak level in the middle means on the 14th day। देखो 14th day पे दोनों का लेवल एकदम ऐसा बढ़ जाएगा। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH leading to the maximum level during the mid cycle, this is called LH should induce rupture of the graphene follicle। बोलो जब वो 14th day को जब एकदम LH का लेवल बढ़ गया तो ओव्यूलेशन हुआ, उसको हम बोलेंगे LH should, and it leads to the rupture of the graphene follicle to release the ova means ovulation। It is followed by the luteal phase during which the remaining part of the graphene follicle transfer into corpus luteum। बोलो graphene follicle किसमें टर्न हुआ? corpus luteum। The corpus luteum secrete the large amounts of the progesterone। तो अब अपने देखो वो corpus luteum से तुम देखोगे तो बोले किसका लेवल बढ़ गया नीचे के उसमें फिगर में देखो तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। Corpus luteum immunes the progesterone which is essential in maintenance of the endometrium cell। Endometrium is necessary for the implantation, fertilization of ovum and other events of the pregnancy। वो फिगर देख के तुम ये जो सब लेवल अपने स्टडी करोगे तो ही याद रहेगा और इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। What is parturition? Which hormones involved in the induction of the parturition? देखो पेज नंबर 54 पे 3.7 the average duration of the human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes the expulsion delivery of the fetus। This process of delivery by the fetus childbirth is called parturition। ये parturition की यहाँ की definition है। Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism। The signals of the parturition originates from the fully developed fetus and the placenta। यहाँ पे जो डेवलप फीटस है वो डेवलप फीटस और उसका कनेक्टिंग जो पार्ट है प्लेसेंटा, वो दोनों में से इंक्रीज होते हैं। एंड इट इंड्यूस द माइल्ड यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उससे वो जो उससे धीरे धीरे इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, माइल्ड है, वो स्टार्टिंग है फीटस में से ही आया है और प्लेसेंटा में से आया, उसको हम बोलेंगे फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यहीं से समझना है। बोलो इसका थोड़ा जैसे भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट ब्रेन पे से पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी उसके लिए क्या क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? इसका और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जितना कॉन्ट्रैक्शन इसका बढ़ेगा इतनी इफेक्ट ब्रेन और पिट्यूटरी पे होने से और ऑक्सीटोसिन आएगा। वो ऑक्सीटोसिन इसका और विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है और विगरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द मोर विगरस कॉन्ट्रैक्शन मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूटेरस के वॉल पे इफेक्ट करता है और यूटेरस के वॉल जैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है वो कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट पिट्यूटरी भी आती है तो और ऑक्सीटोसिन आता है। बस ये साइकिल चला करती है। The stimulative difference between the uterine contraction and oxytocin secretion contain resulting in stronger and stronger contraction। This leads to expulsion of the body out of the uterus through the birth canal, that is called parturition। Soon after the infant delivery, the placenta and they are also expelled। In our society, women are often blamed to giving the birth to the daughters। Can you explain this? Why it is not correct? It is not correct। Why? Because birth of child, that is male or female, it is totally depends on the 23rd pair of the chromosome। 23rd pair of the chromosome in male is the XY। So it produces two kind of sperms, X 23rd and Y 23rd। Yes, first two 22nd pair all are same in male female। वो यहाँ भी 1 2 3 4 से 22nd तक एक एक क्रोमोसोम आए तो सब सेम है तो हम वो बताते नहीं हैं। तो बोलो मेल में दो टाइप के स्पर्म हुए, एक्स एंड वाई। फीमेल में एक्स से एक्स है 23rd पेयर, तो वो 23rd पेयर का को ध्यान रखते हुए ऑल ओवा विल बी ऑफ द एक्स टाइप ओनली। सो व्हाट विल बी हैपन? इफ एनी ओवा कम इट विल ब्रिंग एक्स ओनली, बट व्हेन स्पर्म आएगा वाई वाला तो ही एक्स वाई बनेगा। बट अगर समझ लो वाई एक्स वाला आया है, एक्सेस में गर्ल चाइल्ड होगी तो गर्ल चाइल्ड के लिए कौन और मेल चाइल्ड के लिए कौन? दोनों के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द फीमेल। और तो पूरा पैराग्राफ
हमारे बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, दैट इज yes, page number 52, second paragraph. One has to remember that the sex of the baby is decided by decided at this stage itself. Let us see how to know chromosome pattern of the human female is XS and that is the XY. The haploid gametes से वहां से पूरा है, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है वो. How many eggs are released by the human ovary in a month? 1 month 28 डेज में से एक बार यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, सेकंड टाइम 28 डेज की इफेक्ट यहाँ पे आके यहाँ से होगी, थर्ड 28 डेज में यहाँ से रिलीज होगा. Do you think that have the release if the mother gave birth to the identical twins? What will the answer change if twins born were fraternal? आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि दोनों ट्विंस एक सरखे हैं. हम अब में देखते हैं, बोलो क्या होता है यहाँ पे, बोलो क्या हुआ. ये ओविडक्ट के अंदर ओवा आया एक्स वाला, स्पर्म आया एक्स वाला, तो ये एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो एक्स एक्स फीमेल चाइल्ड होगी. बोलो यहाँ पे ये जाइगोट है, वो जाइगोट बोलो क्लीवेज में जाएगा, क्लीवेज में जाएगा तो वो 23rd पेयर एक्स एक्स ही मिलेगी. 1 to 22nd पेयर तो हमने यहाँ लिखी नहीं, वो तो सही मिलेगी. 2 में से 4, 4 में से 6. बट ड्यू टू सम रीजन इफ दिस बोथ get separate and this act as an independent embryo, this is also independent embryo, this is zygote. तो यहाँ से once again पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें से भी एक गर्ल चाइल्ड आएगी, इसमें से भी एक गर्ल चाइल्ड आएगी, बोथ आर आइडेंटिकल सेम. चलो अब यही चीज समझते हैं, ये बोलो क्या आएगा. ओ एक्स वाला है, स्पर्म आया वाई वाला, तो बोलो यहाँ पे जो एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज होके दो सेल बनेंगे, दोनों कौन से बनेंगे, एक्स वाई. यहाँ भी दोनों ये सेल सेपरेट हो गए और वो इंडिपेंडेंट जाइगोट की तरह एक्ट कर रहेंगे, तो दोनों बॉय चाइल्ड होंगे, मेल चाइल्ड. बोलो क्या रहेगा, आइडेंटिकल सेम, बिकॉज क्रोमोसोम पैटर्न इज सेम. चलो इसके अलावा देखते हैं, मेनी टाइम ड्यू टू द अनसर्टेन रीजंस not a single egg is released but more than one, generally 2. बोलो 2 एग आ गए ओवा सेकेंडरी साइड, और इसको फर्टिलाइज किया एक एक्स वाले क्रोमोसोम ने और मींस एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने, और इसको भी एक्स क्रोमोसोम वाले दूसरे कोई स्पर्म ने किया. तो बोलो यहाँ पे डेवलप होगा एक्स एक्स, यहाँ भी डेवलप होगा एक्स एक्स, दोनों गर्ल चाइल्ड रहेगी बट दोनों के अंदर स्पर्म अलग है. दैट इज द रीजन दोनों ट्विंस रहेंगे बट नॉन आइडेंटिकल होंगे. बोलो नॉन आइडेंटिकल के लिए वर्ड दिया है, क्या दिया है, फ्रेटर्नल. नंबर 2 बोलो ऐसे ही सोचो, एक्स एक्स वाले ओ वाले थे बट क्रोमोसोम स्पर्म वाई वाई वाले आ गए क्रोमोसोम, तो बोलो ये अपने एक्स वाई डेवलप होंगे, दोनों चाइल्ड कौन होंगे, मेल होंगे, बट दोनों के अंदर स्पर्म अलग आए, मींस दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर रहेंगे, नॉन आइडेंटिकल. अब देखो क्या हुआ, इसे 2 ओ आए, दोनों एक्स एक्स वाले, एक को फर्टिलाइज किया वाई वाले स्पर्म ने और एक को फर्टिलाइज किया एक्स वाले स्पर्म ने. तो बोलो ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा एक्स वाई और ये एक्स एक्स, मींस क्या होगा, 2 ट्विंस, बट एक मेल होगा एक फीमेल. 21. How many eggs do you think released by the ovary of the female dog which give birth to the 6 puppy? 6. ऐसे जो एनिमल है they have ability to produce more than 1 ova at a single time. तो बोलो 6 आए तो उसमें से कोई मेल स्पर्म, कोई में एक्स वाला होगा, कोई में वाई वाला होगा, तो जितने एक्स वाले होंगे वो मेल बनेंगे, जितने वाई वाले होंगे जितने मेल बनेंगे, जितने एक्स वाले होंगे वो फीमेल बनेंगे. ओके